Okay, am I visible and audible? Yes, sir. Okay, so let's begin with the next topic. So we have started with the employees relation last year, no? Yes, sir. है ना? ये start करें? Yes, employee relate. Yes, sir. Employee relation. So till what point we have covered up? Because I think The benefits last two slides last two slide. Okay, were one left. second. यही दोनों हुए थे ना जिसमें हमने So, बताया कि what yes, is sir. employees relationship. ये नहीं हुआ था सर बेनिफिट. हाँ हाँ this needs to be covered up. Now benefits of employees relations. Yes, there are a lot of सर benefits. आवाज बहुत धीमे आ रही है. हेलो अब आ रही है Yes, sir. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ प्लीज होल्ड
hello. Now tell me whether am I audible or not. Yes, sir. Okay, audible. सभी के Yes. लिए audible है? Audible है सभी के लिए? If there is something wrong, Yes, sir, you're audible. audible? Okay, because I have changed the system. कुछ problem थी जो पुराना system था उसके अंदर. So I have changed and using the another system. So let's begin with. Okay, now let's start. So the benefits of employees relations. So yes, from the basic definition part, now we are in the position to say that yes, though the good relations works, especially if it is an organizational relations between the employer and employees. Obviously, it enhances the productivity of the organizations. A good relation and understandability between these two parties boost up the motivation of the employees to work in a good directions for the well-being for the company. Now let's talk about the individual benefits that may occur when there is a good relationship between the employees and employers. The first one is a growth and development. A harmonious relationship between employees and employers contributes to economic growth and development, which leads to an increase in efficiency. Harmonious relationship. Obviously, ये क्या होता है कि जब हम when we work with an organization, and वहाँ के जो code of conduct है, वो favorable है, वहाँ की working environment favorable है, जो हमारी जो salary and wages हैं, वो satisfactory हैं, competitive हैं, हमें टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जाता है या जो जो असिस्टेंस है जो एम्प्लॉयबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है एम्प्लॉयमेंट का वो अगर हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन लेवल है बढ़ जाता है हम किसी काम के लिए अपना एक फुल पोटेंशियल दिखाते हैं पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं मन लगाकर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं and at the same time if the relationship is worst or it's not favorable if not the right salary and compensation is provided to the employees not the good environment is being rendered to the employees for better conduct then इस केस में हमारा क्या है जो मोटिवेशन होता है वो खराब होता है और अल्टीमेटली हम कंपनीज के लिए हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं पूरे जिल के साथ या एंथुजियास्ट होकर हम काम नहीं करना पसंद करते हैं हम डीमोटिवेट होते हैं और हमेशा एक इस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि व्हाट आर द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट दैट दैट कैन गिव मी द बेटर सेटिस्फैक्शन तो हम वहाँ मूव करने की कोशिश करने लगते हैं एम्प्लॉयज की जो टर्नओवर रेट है टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज का छोड़ना बार बार जो है चर्न कर जाना कुछ ही दिनों में या 6 महीने में या साल भर में बिकॉज ऑफ सम डिससेटिस्फैक्शन तो एक एम्प्लॉय जब आते ही अगर कहीं बाहर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के बारे में सोचने लगे तो इसका मतलब साफ है कि एम्प्लॉयज का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बिलो पार है वो सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं है क्यों क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उसको जो फैसिलिटीज देती है जो बेनिफिट्स देती है
वो एम्प्लॉयज के लिए फेवरेबल नहीं है। जब फेवरेबल नहीं है तो अपनी या तो आधी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे या बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे आप उनके काम के बदले अगर एक एक जो डिजर्वियस सैलरी है या जो कंपनसेशन है नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा एक मॉरल डाउन होता है, हम काम करने में मन नहीं लगाते। और इस तरीके से अगर हम काम नहीं करेंगे, एफिशिएंसी हमारी नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी पे भी इसका इफेक्ट होगा। और ऑर्गेनाइजेशंस के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है, एक एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगी, एक रोड़ा का काम करेगी। और एम्प्लॉयमेंट जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन at the same time, in a vice versa, if we say if there is a good relationship, अगर एक कंपनी अपने वायदे के अनुसार, अपने कमिटमेंट के अनुसार, अपने स्टैंडर्ड एचआर पॉलिसी के अनुसार अगर अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करती है, तो एम्प्लॉयज कंपनी के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करेंगे। So the good growth and development of a company is completely rely upon the good or bad relationship of employability between the employer and employees. If there is a good relations, So your harmonious relations. voice is getting. Hello, am I audible now? So your voice is getting cracked. समझ में नहीं आ रहा. हेलो, आप समझ में सुनाई पड़ रही है? ओके, क्या ये रिएक्शन सभी के साथ है? There is some obstruction in my voice. यहाँ पे तो नहीं Everybody. है सर। मतलब यहाँ पे सही आ रहा है। नहीं आ रहा. ओके, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो मे भी एक बार आप अपने जो है जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी देखिए। या कई बार ऐसा होता है कि गूगल मीट में वो डिपेंड करता है कि भाई आपके जो नेटवर्क कवरेज या नेटवर्क क्वालिटी कैसी है आपके मोबाइल फोन का, उस पे ऊपर बहुत सारी बातें फैक्टर करती हैं। एक अच्छा वीडियो और ऑडियो सिग्नल्स पाने के लिए सबसे पहले आपका जो मोबाइल कनेक्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो शायद कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, हमारी इंटरनेट स्पीड अच्छी है। तो अगर एक बार आप देख लें इंटरनेट में क्या आपकी पूरी जो नेटवर्क कवरेज है वो अच्छी आ रही है। आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं? अगर मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं तो आप अपना एक बार सिग्नल लेवल चेक करिए, अपने नेटवर्क क्वालिटी को चेक करिए, है ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल द टाइम कि ऑब्स्ट्रक्शन कम्स फ्रॉम आवर साइड। पहले सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी उसको हमने छोड़ दिया, दूसरे सिस्टम पे आए हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। और अगर सभी के साथ हो तो एक बार बताइए हमें आप, क्या ये प्रॉब्लम सभी के साथ है? यस, नो सर, यहाँ पे तो क्लियर है। क्लियर है ना, अनुभव क्लियर है। आकृति, आकृति आप बताइए। आकृति इज देयर? नॉट देयर, वेरी गुड। आई थिंक तनुष शुड बी देयर। तनुष, नो सर. आपको सुना? हेलो सर. ओके, सर नो आकृति. प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। सौरभ चतुर्वेदी? हेलो. हाँ आकृति, आई कैन गेट यू। यस सर, सुनाई दे रहा है आपकी पूरा है आवाज. ना? अच्छा, सौरभ चतुर्वेदी आपको? यस सर, आ रही। ठीक है। सुधा? Yes, sir. तो आई थिंक सिर्फ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज चेक योर कनेक्शन, बिकॉज दिस है ना, जहाँ पे टेक्निकलिटी की बात आती है वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपके सिग्नल्स को। तो मे भी ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। So yes, your growth and development is completely depends upon how your employer treats you. What kind of facilitations or the proper conduct for the organization function is being provided to you that makes you satisfied, that motivates you for your obligations, for your working. Greater efficiency in turn leads to higher productivity and growth. It is important to keep the employees motivated if organization wants to get the best from them. Workers
lacking in motivation will reduce productivity in a workplace. Yes, कई बार ऐसा होता है कि the salary part is good, even the working environment is good, but what happens कि you are not getting the proper motivation, you are always getting the discouragement, disappointing from your employer, from your boss. सैलरी आपकी अच्छी है, लेकिन पता चला अगर आपको 12 घंटे की काम करे और 12 घंटे काम करने के बाद भी अगर आपको सिर्फ सुनना पड़े, जैसा कि होता है यूजुअली जो आपके सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब प्रोफाइल में होती है। हालांकि आजकल इस कंपटीशन में कोई भी प्रोफाइल सुरक्षित नहीं है जहाँ पे आपको सुनना नहीं पड़ता है, जहाँ पे आपको डिस्करेज नहीं किया जाता है, चाहे वो इवन इफ यू डोंट माइंड आपके मीडिया में भी ऐसा बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। जब आप व्हेन यू विल बी द पार्ट ऑफ सम मीडिया चैनल्स, आपके पास एक प्रेशर होगा कि अच्छी से अच्छी न्यूज लेकर आइए या इतने न्यूज लेकर आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स ऑल राइट, अगर नहीं करते हैं तो आपको काफी डिमोटिवेट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। तो इस तरीके का जॉब इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारे लिए कंजेनियल नहीं होता है। हम बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि जो हम काम करते हैं उसके बदले हमें इनकरेजमेंट कम और डिस्करेजमेंट ज्यादा मिलता है, डिसअपॉइंटिंग ज्यादा होते हैं। तो जब डिसअपॉइंटमेंट है तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। the salary or the monetary things doesn't matter if the better working environment and the motivation is not given to you. सैलरी आपको चाहे 1 लाख रुपए मिले, लेकिन हर समय आपका बॉस आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, डाउन साइज करने की कोशिश करे, आपकी कंपेयरिंग किसी दूसरे एम्प्लॉय से करे कि ये फलाना आदमी तुमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसके पास ज्यादा एफिशिएंसी है, तो आप कहीं ना कहीं एक जो है अपना मोरल को डाउन हो जाएगा आपका और बहुत ज्यादा काम में मेहनत नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लगा पाएंगे। इन कंक्लूजन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंपनी इज इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉयज। इफ एम्प्लॉयज आर बूस्ट अप, दे विल वर्क फॉर द कंपनी, दे आर नॉट, दे विल बायकॉट, और नॉट, इफ इट इज नॉट बायकॉट, दे विल शो देयर नेग्लिजेंस। बायकॉट तो कर ही नहीं सकते पेश की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप बायकॉट करते हैं, डिनाई करते हैं, यू विल बी आउट ऑफ द कंपनी। तो आप काम से जी चिराने लगते हैं। आपको अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पे कुछ भी करिए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी एंड कंपनसेशन। तो यू आर ट्रीटेड एज अ मशीन, एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, so that is why you are not satisfied. But at the same time, if you get regular motivation doesn't mean कि भाई सिर्फ सैलरी देकर या फैसिलिटी देकर ही आता है। मोटिवेशन आपके जो बॉस के जो एंथुसियास्टिक जो वर्ड्स हैं, जो इंकरेजिंग वर्ड्स हैं, उससे भी आप मोटिवेट होते हैं। आपने जो काम किया उसके बदले शाबाशी देना, उसके बदले प्रमोशन देना, आपके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से ट्रीट करना, ये भी एक मोटिवेशन देता है। कई बार मॉनेटरी, अगर हम सिंपल बात करते हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज होते हैं, जो प्यून्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, यूजुअली 90% लोग जो है उनके साथ अनफेयर बिहेव करते हैं। मतलब उसको रेस्पेक्ट की भावना से नहीं देखते हैं, या उसको कभी भी रिगार्ड नहीं देते हैं, हमेशा तुम कहते हैं या सिर्फ ऑर्डर ही झाड़ते रहते हैं। तो ऐसा करने से वो जो 4th क्लास का जो एम्प्लॉयज है अपने आप को डिमोरलाइज समझता है, वो अपने आप को छोटा मान लेता है, और इसके बाद वो क्या होता है, र्यूड हो जाता है। थोड़े दिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस के बाद वो र्यूड हो जाता है, फिर आपकी बातों का बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं देता है। या आपके लिए अगर आप कहेंगे भैया जाके एक कप मेरे लिए कॉफी ले आओ, चाय ले आओ, तो उतना ज्यादा वो केयर नहीं करता। तो कुल मिला के वो डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अपने प्यून को आप अच्छे तरीके से ट्रीट करिए, उनसे आप करके बात करिए, हमेशा उनके प्रॉब्लम्स को समझिए, तो यकीन मानिए आपका वो हर काम करता है, मोटिवेट होता है। आप किसी बड़े फंक्शंस में यूजुअली क्या होता है कि जब इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो हम जो बड़े बड़े हस्तियां हैं उनकी तारीफें करते हैं या उनके क्रेडिट्स को हम लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन कभी भी क्या हमने अपने जो एम्प्लॉयज 4th क्लास के जो प्यून्स हैं, क्या उनके बारे में भी 2 वर्ड्स बोले हैं? अगर बोला है तो वो आदमी हमेशा याद रखेगा और आपके लिए वो हमेशा काम करेगा। और जब कभी लिया ही नहीं, सिर्फ बड़े दर्जे लोगों को ही आपने जो है मोटिवेट किया या उनके जो गुणगान की आपने पूरी तारीफ करी, तो ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए होगा और उतने ही लोग आपके लिए काम करेंगे। तो मोटिवेशन टुवर्ड्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन डजंट मैटर वेदर दे आर A class ऑफिसर और दे आर 4th क्लास पीपल।
They must be encouraged, they must be motivated, not by giving the monetary benefits. Monetary benefits आपको समझ में आ रहा है? Monetary means related with the finance, related with the money. The money doesn't make an employees all the time happy, all the time happy. So what is the crux that you need to motivate your people, your employees, not by giving only the monetary benefit, but other benefits like motivational words for the employees. If they that does well, if they are doing bad, very good for the company. So encourage them by uh, accepting their implementations, their productivity. So this leads to the motivation of the employees, and it will always help a company to grow up. Human resource strategies are deliberate plans companies use to help them gain and maintain a competitive edge in the marketplace. So human resource strategy is nothing but the strategies which are made by the human resources department. And who are the human resources department? Who take care for the employees working within organizations. आप एचआर डिपार्टमेंट के अंदर हमेशा एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेम की जाती है। वो पॉलिसी क्या बताती है कि हम अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं। कॉम्पिटिटिव मतलब वी आर द बेस्ट इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द employability services, the benefits to you. We are good as compared to the other company dealing in the same industry because our HR policy is the best. Why our HR policy is the best? Because we treat our employees in a well manner. We provide them a better working environment. We provide them leaves. We provide them the promotions and other benefits depending upon their conduct. तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का ये काम होता है थ्रू आउट ईयर कि अपने जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड जो एम्प्लॉयज रिलेटेड है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करें, रॉबस्ट कैसे बनाएं। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड एचआर पॉलिसी आप फॉलो करेंगे, कंपनी जितना ज़्यादा अपनी स्टैंडर्ड एचआर पॉलिसी बनाएगी उतना ही ज़्यादा आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा। जितना ज़्यादा डिस्करेजिंग एंड डिसअपॉइंटिंग आपका एचआर स्ट्रेटेजी बनेगा उसके हिसाब से ही एम्प्लॉयज आपके काम करेंगे। अच्छी है तो दे विल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेल मैनर, बहुत बुरी है तो दे विल बी डीमोटिवेटेड एंड विल नॉट शो देयर enthusiasm towards their work. Employees relations programs focus on issues affecting employees such as pay and benefits, supporting work-life balance, and safe working conditions. I think these are something, these points have been covered up. If I'm sure, can anybody tell that these points? No, it's okay. Because these three terms is being repeated, pay and benefits, work-life balance, and safe working conditions. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, हालांकि ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई करते हैं, उनमें से 3 का जिक्र किया है यहाँ पर कि पे एंड बेनिफिट्स। ऑब्वियसली ये पहला जो एक एम्प्लॉयज़ का हक होता है, राइट होता है, इसके ओवरऑल जो अकॉम्प्लिशमेंट है, जो उसका ओवरऑल क्रेडिट है in terms of like the good educations, the experience, the knowledge towards the working, हम उसको उसके अकॉर्डिंग सैलरी देंगे। कई बार ऐसा होता है स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कि सैलरी पार्ट जो होता है वो उनके पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं होता है। आज हम मार्केट की बात करें कि doesn't matter what kind of credential you have, आपको जो कंपनी वो ट्रीट करती है आप उनके लिए कितना बेनिफिट है, या कंपनी की साइज या उनका जो ऑपरेशन है कितना बड़ा है, तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको सैलरी ऑफर करते हैं। या कई बार कंपनी बड़ी भी होती है, जरूरी नहीं है, तो वो मार्केट में जो सैलरी एंड कंपनसेशन है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रखते और एम्प्लॉयज को अपना जो राइट है वो नहीं मिल पाता है। लेस सैलरी देंगे इफ एक पर्सन हैविंग मोर देन 10 years of experience and possessing good managerial post, and just when they switch over to the other company and they give the less amount, they will not satisfy.
वो हमेशा डिससेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि उसको जो अपने हिसाब से या अपने काबिलियत के हिसाब से सैलरी एंड बेनिफिट्स आप नहीं दे रहे हैं, तो काम कैसे करेगा। आधी सैलरी पे काम करा रहे हैं या 25% पे काम करेंगे, दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स द जॉब। सपोर्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? a balance between the official work and your family life, your social life. क्या आप एक एम्प्लॉयज को इतना स्पेस देते हैं कि एक लिमिटेड जो टाइम फ्रेम है उसके बाद उसमें काम करने के बाद वो अपने सोशल लाइफ को जिए या नहीं जिए? अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अगर उनको आप काम करवाते हैं या उतना वर्क प्रेशर देते हैं, बेचारा अपनी पर्सनल लाइफ क्यों जिएगा? क्या एक आदमी जो है अपने सिर्फ ऑफिस के लिए ही जीता है, या उसकी अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं होते, या अपनी फैमिली के लिए वो टाइम नहीं निकाल सकता? तो अगर आपकी जो वर्किंग टेन्योर, आपका जो ऑफिस आवर इतना लंबा है या इतना वर्क प्रेशर है कि आप अपने फैमिली को या अपनी सोसाइटी में दूसरों को टाइम नहीं दे, अपनी लाइफ को नहीं जी पाते, फिर ऐसे जॉब को करने का कोई फायदा नहीं है। आप देखते होंगे एक फेसबुक में एक बड़ा सा एक आपको देखेंगे एक आता है वीडियोस ऐसे ही उसका नाम नहीं पता है, जिसमें बेचारा 6:30 बजे हाफ डे लेकर अपने घर को जाता है, तो एक एम्प्लॉय जो है उसको टोका टोकी करता है और फिर उसकी वो बैंड बजा देता है। आपने देखा होगा, आई एम नॉट श्योर कि क्या नाम है उसका। तो वो अपने जगह पे सही था, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉयज को 6:30 बजे हाफ डे लेकर अगर घर जाना पड़ता है, तो फिर इसका क्या मतलब है, क्या जॉब होता है? 6:30 बजे तो भाई घर जाने का टाइम होता है, ऑफ टाइम होता है। बट इफ एन एम्प्लॉय इज आस्किंग फॉर हाफ डे इन 6:30 PM, then it's not a good work life balance. तो वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स व्हाट? एक फेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसमें जो वर्किंग आवर्स हैं एक, एक लिमिटेड लेवल का होना चाहिए, 7-8 घंटे का होना चाहिए, 6 घंटे का होना चाहिए, जिससे एक आदमी, एक एम्प्लॉयज अपने सोशल लाइफ को भी जी सके और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा कर सके। One of the most effective ways for a company to ensure good employees relation to adopt a human resources strategy that places a high value on employees as a stakeholder in the business. Every employees is considered as the important stakeholders. Stakeholders हमने आपको पहले बताया था कि those kind of people who are directly or indirectly associated with the company's functionality are the stakeholders. तो employees are the important stakeholder. बिना एक एम्प्लॉयज के या वर्कर के कोई जो कंपनी है वो अपनी सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोच सकता, एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं सोच सकता। सो द एम्प्लॉयज आर द स्टेक होल्डर्स। तो इस तरह की फीलिंग क्या एक एचआर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को देता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू यू, इफ यू वर्क हार्ड फॉर अस वी विल सस्टेन इन द मार्केट, इफ यू डू नॉट हम डिक्लाइन कर जाएंगे। तो क्या इस तरह की मोटिवेशन आपको कभी जो आपकी कंपनी ने एम्प्लॉयर ने दिया है? क्या आपको इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर समझता है या सिर्फ एक काम करने का जरिया समझता है? तो अगर आपकी स्टैंडर्ड एचआर पॉलिसी, तो यूजुअली आप हमेशा ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करेंगे कि यू आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर द कंपनी, और इससे वो मोटिवेट होंगे और वो कंपनी के लिए काम करेंगे, उसके लिए अच्छा एक प्रोडक्टिविटी देने का काम करेंगे। ओके, तीसरा है रिडक्शन इन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने जल्दी एक एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। पूरे 1 साल के अंदर कितने एम्प्लॉयज की आप भर्ती करते हैं, कितना छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं टर्नओवर। कितने समय के अंदर आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, उसका लेंथ, एक एम्प्लॉयबिलिटी की जो लेंथ है वो कितना ज्यादा सस्टेन करता है। अगर हर 6 महीने साल भर के अंदर आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, योर एम्प्लॉयज इज नॉट सेटिस्फाइड, टर्नओवर रेट आपका ज्यादा है। अगर इस तरह की प्रैक्टिस है कि 1 साल के अंदर मान के चलिए कि अगर 20 एम्प्लॉयज की हमने भर्ती की उसमें से 10 छोड़कर चले गए, इसका मतलब है आपकी टर्नओवर रेट जो है 50% है। तो टर्नओवर रेट अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये कंपनी की प्रोडक्टिविटी के लिए नुकसानदायक होगा।
कंपनी के ग्रोथ के लिए एक बाधा बनेगा। तो अगर आपकी अच्छी पॉलिसी है तो टर्नओवर के अंदर रिडक्शन हो जाएगा, लोग कम से कम छोड़कर जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद योर एचआर पॉलिसी। So, if you have a good relations, if a company is having a loyal and good relationship with the employees, their workforce, the turnover rate will be reduced. Like in SMS, the people are working for almost 10 years, 50 years, 20 years. The turnover rate is very less. I have been working for last 5 years because of the standard HR policy. I'm good. I'm getting good treatments from the employer of SMS, from the management of employees. So yes, I am sustained for 5 years, and many people also are sustaining. So turnover rate is great where employees usually left out their jobs. Organizations that have good employee relations provides higher wages and other attractive benefits, making it in best interest of the employee to stay. अगर अच्छी सैलरी है, कॉम्पिटिटिव सैलरी है, अच्छी फैसिलिटीज है, तो लोग छोड़कर क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पे भी उनको वही मिलेगा। तो जो चीज बाहर हमें मिलने वाली है अगर मुझे यही भी मिल रही है तो मैं यहाँ पे छोड़कर क्यों जाऊंगा, मैं यहीं पे सस्टेन क्यों ना करूँ। तो आपकी एम्प्लॉय जो टर्नओवर रेट में उसमें अपने आप कमी आ जाएगी। It is the responsibility of the company to create an engaging work environment to make the employees feel valued. The cost of recruitment, hiring, and training will come down with lower employee turnover. अगर all facilitations are given to the employees, they will sustain with the organization. और इस तरीके से जो हमारा रिक्रूटमेंट और हायरिंग का जो जो कॉस्ट आता है, जो हम अपना एफिशिएंसी लगाते हैं, वो कम हो जाएगी। क्या जरूरत है कि हर 6 महीने साल भर के बाद हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें, हम फिर से एडवर्टीजमेंट निकालें, हम फिर से उनका टेस्ट करवाएं, उनके इंटरव्यूज लें, फिर से उनको ट्रेनिंग दें, फिर से उनको काम में लगाएं, वो बंदा फिर से नए सिरे से काम को सीखेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है ना। अगर टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है तो ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रियाएं कंपनी को बार बार करनी पड़ेगी, कम कम समय में करनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयज के लिए लॉस है इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड अदर एफिशिएंट वे। तो टर्नओवर रेट कम करना है तो आप एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 2 PM. So now I invite you all to ask your questions, your doubts, if any. Any query, Anubhav? Another? Okay, if no query, then thank you very much for joining.